आप सब आत्मजनों को मेरा नमस्कार है, मेरा अभिनंदन है। और आप तो जानते ही हैं, बहुत तेज हवा बह रही है, आंधी चल रही है सुसाइड की और अबेटमेंट ऑफ सुसाइड की। जो मर्डर का मुद्दा है वो अभी बिल्कुल कहीं से नज़र नहीं आ रहा। ठीक, तो कोई बात नहीं, टाइम आने पे सबको नज़र आने लगेगा। जब पूरा सर्कल सुसाइड और अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का कंप्लीट हो जाएगा, पूरा चक्र जब पूर्ण हो जाएगा तो मर्डर का केस ऊपर आएगा। और जो आप सब जानते हैं कि सीबीआई ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो कूपर हॉस्पिटल ने फ्रॉड करके बनाया है, उसको एम्स के एक बोर्ड को रेफर किया है कि उसको मर्डर के दृष्टिकोण से उसको देखा जाए। तो ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है वो तो नकली है, वो बोगस है, वो गैर कानूनी है, उसका कानून की नज़र में कोई भी ये नहीं है, उसका इम्पोर्टेंस नहीं है। इसलिए एम्स को इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पे कोई भी निर्णय लेने का ये नहीं है, ना अधिकार है और उचित भी नहीं है। क्यों, वो मैं आपको पहले इंग्लिश में बताती हूँ, फिर हिंदी में बता दूँगी। पोस्टमार्टम प्रोसीजर एंड रिपोर्ट। कूपर हॉस्पिटल had no authority to conduct postmortem proceeding without being authorized by the legal representatives of Sushant Singh Rajput having signed for the authorization. Sandeep Singh had no legal right to authorize Cooper Hospital to get the postmortem done. Any postmortem report issued by the hospital in the absence of legal authorization by the legal representative of Sushant Singh Rajput is void and without any legal force in the court of law. There is no cogent evidence of videographic recording of post-mortem procedure done by the hospital for Sushant Singh Rajput on 14 June 2020. Therefore, there is no cogent evidence of the fact that if at all post-mortem proceedings were carried out on Sushant Singh Rajput on 14 June 2020. Therefore, the post-mortem report issued by the hospital for Sushant Singh Rajput is apparently fake, forced and fabricated because it is prepared on the basis of concocted narrative of theory, not on practical procedure. The post-mortem report cannot be prepared without taking account of various grievous and fatal injuries on the body of Sushant Singh Rajput. No post-mortem report can be prepared without photography and videography of the whole body, which includes assault injuries, strangulation injuries and electrocution injuries on the body of Sushant Singh Rajput. No post-mortem report can be prepared without describing the features of the strangulation injury mark which is present in the front of the neck of Sushant Singh Rajput. No post-mortem report can be prepared without estimating time of death of Sushant Singh Rajput, calculating on the basis of black, blue and purplish colored injury marks present on the body of Sushant Singh Rajput, which have appeared only after passage of 18 to 20 hours after death of Sushant Singh Rajput in the night of 13 June 2020, and also on the basis of gaseous distension of the stomach and intestine, which has taken 18 to 20 hours to develop, and after taking into account of degenerative changes on the facial features of Sushant Singh Rajput, and on taking note of the food contents in the stomach, and lastly on marking the degenerative changes in the tissue of the viscera. No post-mortem report can be made without describing features of a strangulation injury mark present on the front of the neck of Sushant Singh Rajput, and the presence of a black colored round mark of 2.5 centimeter diameter, 2.5 centimeter below the left end of the
strangulation injury mark on the left side of neck of Sushant Singh Rajput. Each and every fractured and body injury needed to be recorded with photography, videography and radiography, means X-ray recordings of the whole body of Sushant Singh Rajput. The eyewitnesses and one of the apparent murderer, named as Surjit Singh Rathore, has given testimony on the media that he went inside the mortuary on 14th June 2020 at 11 a.m. along with Riya Chakravarti. Surjit Singh has stated that he removed the cloth from the bare body of Sushant Singh Rajput and found that the entire body of Sushant Singh Rajput was swollen. Surjit Singh Rathore did not find any incision or the stitches or bandages on the body of Sushant Singh Rajput, which is necessary after this a process of post-mortem operation. If the post-mortem would have been done, then the gaseous swelling of the abdomen would have subsided after incision on the stomach and release of gaseous contents from the stomach and intestines. Surjit Singh Rathore would not have found the body of Sushant Singh Rajput bloated and swollen if abdomen was incised and the abdomen was opened and the viscera were operated. The hospital doctors have destroyed and evaded and concealed the crucial evidences of murder of Sushant Singh Rajput and have faked and forged and fabricated a bogus post-mortem report. The CBI or the Board of Doctors of All India Institute of Medical Sciences, Delhi, cannot rely on the bogus post-mortem report prepared by the Cooper Hospital by evading, destroying and concealing the evidences of murder of Sushant Singh Rajput. अब मैं आपको हिंदी में बताती हूँ कि ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार हुआ है और एक माफिया के खुशामद में और एज ए पार्ट ऑफ क्रिमिनल एक्ट ऑन द पार्ट, ये डॉक्टरों ने मिलके जो क्राइम किया है, नकली पोस्टमार्टम प्रोसीजर का ये सर्टिफिकेट बनाने का, और उन्होंने कोई भी पोस्टमार्टम ये प्रोसीडिंग करी ही नहीं है। तो पहली बात कि कूपर हॉस्पिटल को कोई राइट नहीं है पोस्टमार्टम करने का, क्योंकि किसी भी रिश्तेदार ने और उनका भी कोई भी कानूनी जो उनका उत्तराधिकारी है, किसी ने भी हॉस्पिटल को ऑथराइजेशन नहीं दिया है, ये राइट नहीं दिया है। तो संदीप सिंह नाम के एक स्ट्रेंजर का कोई राइट नहीं है बॉडी को हैंडओवर करने का, और संदीप सिंह स्ट्रेंजर है, उसका कोई राइट नहीं है, बॉडी के ऊपर कोई अधिकार नहीं है हॉस्पिटल को ये बॉडी दे करके और पोस्टमार्टम ऑर्डर करने का। कोई भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो बिना कानूनी अधिकार के किसी अजनबी के द्वारा दिया गया है, वो बिल्कुल कोर्ट ऑफ लॉ में, बिल्कुल किसी भी कोर्ट में उसका कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है, और ना तो इस प्रोसीजर का कोई इम्पोर्टेंस है, ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कोई प्रोसीजर, ये टोटली इलीगल है। कोई भी ऐसा ठोस सबूत नहीं है आधे वीडियोग्राफी का और रेडियोग्राफी का और फोटोग्राफी का जो दिखाए कि पोस्टमार्टम प्रोसीडिंग हुई थी 14 तारीख में। इसलिए कोई भी सबूत नहीं है इस सच्चाई का कि पोस्टमार्टम प्रोसीडिंग बिल्कुल हुआ था ही नहीं सुशांत सिंह राजपूत के बॉडी के ऊपर 14 जून 2020 को। इसलिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो हॉस्पिटल ने उससे किया है वो बिल्कुल नकली है, और ये एक फ्रॉड किया गया है और जालसाजी किया गया है, क्योंकि ये बनावटी कहानी गढ़ करके
एक ऐसा किताबी सिद्धांत को लिख दिया गया है, जबकि प्रैक्टिस में प्रोसीजर पोस्टमार्टम का किया ही नहीं गया है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसने इग्नोर किया है बॉडी की सारी इंजुरीज को, क्योंकि फोटोग्राफी नहीं है, वीडियोग्राफी नहीं है, ये एक्सरेज नहीं है, तो कोई भी इंजुरी को उसने किनारे रख दिया है। और किसी भी बॉडी के अपरेंट इंजुरी को आप छुपा करके पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं बना सकते। कोई भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बिना वीडियोग्राफी के, बिना फोटोग्राफी के, बिना एक्सरे के, मीन्स रेडियोग्राफी के, पूरे बॉडी, जिसमें पूरे बॉडी का ये सारा बॉडी जिसमें के अंदर आ जाता है, फोटोग्राफी में, वीडियोग्राफी में, रेडियोग्राफी में, और सारे सबूत उन पे उनको मारने का, उनको गला दबाने का और उनको बिजली से इलेक्ट्रोक्यूट कर देने का, कोई भी उसको छुपा करके नहीं बनाया जा सकता। कोई भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं तैयार किया जा सकता बिना उनके गले में जो इंजुरी मार्क है, गला दबा देने का, उसको डिस्क्राइब, उसके एक एक फीचर को का वर्णन किए बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं बनाया जा सकता है। किसी भी इंजुरी को, इतना प्रोमिनेंट इंजुरी है, इतना साफ दिखने वाला इंजुरी है, उसको ये किनारे करके पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं बनाया जा सकता है। कोई भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार नहीं किया जा सकता है बिना ये हत्या के, मृत्यु का टाइम का निर्धारण किए बिना। ये बिल्कुल जरूरी है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का टाइम निर्धारित करना मस्ट है, और ये टाइम निर्धारित किया जाएगा। जो यहाँ पे जो ब्लैक मार्क है, जो आईज में ब्लू मार्क है, और जो पर्पलिश कलर का स्ट्रैंगुलेशन इंजुरी मार्क है सुशांत सिंह राजपूत के बॉडी पे, उसको बेसिस पे जो कि 18 से 20 घंटे के बाद डेवलप किया है सुशांत सिंह राजपूत के ये पे शरीर पे, वो उसका रिकॉर्ड बनाना बहुत ज़रूरी है। और किस आधार पे ये टाइम ऑफ डेथ, मृत्यु का समय निर्धारित किया जाएगा। दूसरा बेसिस है जो गैस जो फूल गया है, पेट जो फूल गया है गैस के जमा होने से, उसमें भी 18 से 20 घंटे का टाइम लगता है। तो एक वो भी एविडेंस है कि बॉडी 18 से 20 घंटे पुरानी है। अच्छा, उसके बाद जितना भी फेस में जो डिजेनरेटिव चेंजेस, मरने के बाद जो ये एक एक टिश्यू जो मरता है और मरने के बाद उसका सारा कुछ बदल जाता है और उसमें बहुत चेंजेस आते हैं, उसके बेसिस पे भी मृत्यु का टाइम निर्धारित किया जा सकता है। उसके बाद जो उनके ये पेट में और उनके अंतड़ियों में जो खाना है, वो लास्ट खाना कब खाया था, वो डाइजेस्ट हो गया, स्टमक खाली हो गया कि इंटेस्ट नहीं खाली हुआ, इससे भी टाइम का निर्धारण किया जा सकता है, मृत्यु के टाइम का निर्धारण किया जा सकता है। और जैसे कि लिवर है, किडनी है, हार्ट है, ये सब के टिश्यू में एक एक टिश्यू मरने लगता है और गलने लगता है, तो उसका जो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे तो उससे मृत्यु का टाइम बिल्कुल निर्धारित हो जाएगा। तो इस जो बोगस नकली जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें कोई भी फाइंडिंग नहीं है और न कोई एफर्ट लिया गया है, न कोई ऐसा उन लोगों ने कोशिश की है कि मृत्यु का टाइम को निर्धारित किया जा सके। दूसरी बात है कि जो यहाँ पे जो स्ट्रैंगुलेशन, गला दबा के मारने से जो इंजुरी जो पैदा हुई है, उसके एक एक विशेषता को अलग अलग से वर्णन करना बहुत ज़रूरी है। हॉरिजॉन्टल है, कितना नीचे है, कितना लंबा है, क्योंकि अगर वो ये लाश टंगी होती तो पूरा सर्कल बनाएगा, उसको नूज कहते हैं। यहाँ नूज नहीं है, सिर्फ यहीं तक है, आधे से थोड़ा ज़्यादा नेक को कवर करता है, पीछे खाली है, एंड पे आके एब्रप्टली ये सारा एक एक फीचर, कितना चौड़ा, कितना लंबा, कहाँ पे पोजीशन है, क्या रंग है, कितना ड्राइनेस है, कि ये मार्जिन शार्प है कि नहीं शार्प है, सारा लिखना है। कुछ भी नहीं लिखा है,
उस इंजरी को इन लोगों ने टोटली इग्नोर किया है। तो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट बिल्कुल भी कानून की नज़र में तहत में ये बिल्कुल ही ये नहीं है, वैलिड नहीं है, वैध नहीं है। अच्छा, ये जितना भी इनके बोन जितना भी टूटे हुए हैं, जितनी हड्डियां टूटी हुई हैं, उस सब की रिकॉर्ड बननी है। कहाँ कहाँ भी पूरे बॉडी का फोटोग्राफी करना है, वीडियोग्राफी करनी है, फिर एक्सरे लेना है बोन को देखने की कि कहाँ कहाँ पे बोन फ्रैक्चर किया हुआ है। कुछ नहीं किया है, सिर्फ इन लोगों ने कागज पे नकली कहानी गढ़ी है। तो ये कभी भी कोर्ट में जाके एकदम मुंह के बल गिरेगा ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट, और उसको आज भी एम्स भी कोई रिकॉग्निशन नहीं दे सकती। अगर देती है तो हम लोग उसको चैलेंज करेंगे। अभी जितना भी सुसाइड और अपेटमेंट का सुसाइड की आंधी चल रही है, सब शांत हो जाएगी अपने समय आने पे। जब पूरा राउंड कंप्लीट हो जाएगा तो सब ये हो जाएगा। जो आंखों से देखने वाला गवाह जो है, सुरजीत सिंह राठौर नाम का आदमी, जो 15 तारीख को मॉर्चरी में रिया चक्रवर्ती के साथ जाता है और मीडिया में आके इंटरव्यू देता है कि मैं अंदर गया था, मैंने उसके बॉडी को ये का चादर उठा करके पूरा बॉडी को देखा, पूरा बॉडी बुरी तरह से सूजा हुआ था, मतलब स्वेलिंग थी बॉडी पे। तो उसने तो ये नहीं मेंशन किया है कि बॉडी में कोई भी चीरा लगा, कोई स्टिच है या उसके स्टिच के ऊपर बैंडेज करते हैं, ये 3 चीजें नहीं थी। और बॉडी सूजा हुआ था, मतलब पेट पूरा फुला हुआ था, क्योंकि गैस अभी भी अंदर है। चीरा लगने से जब स्टमक में भी चीरा लगेगा तो गैस बाहर आ जाएगा, पेट पिचक जाएगा। वो तो हुआ नहीं, तो ये चीरा तो लगा ही नहीं था। फिर क्या किया गया है, वहां जो 45 मिनट या हो सकता है उससे ज्यादा, ये दोनों तीनों चारों पांचों जो गए हैं मॉर्चुरी के अंदर, हाँ, अपने बाप की अमानत समझ के, ये वहां कितने देर थे। इन लोगों ने अपने आंखों को ठंडक दी है ये देख के कि हाँ, सुरजीत सिंह राठौर नाम का बहादुर आदमी ने उसको गला दबा के मारा है। इसको बिल्कुल ही कंफर्म करने के लिए रिया चक्रवर्ती गई है और उसने अपना कमाल उसको दिखाया है चादर हटा के। दूसरी बात है कि उसके बाद इन लोगों ने मिल करके और मॉर्चुरी के लोगों ने मिल के बॉडी को पूरी तरह रैप कर दिया है। ठीक, बिना किस लिए रैप किया है? पहली बात को ये दिखाने के लिए कि छुपाने के लिए कि पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं। दूसरी बात, इतनी जो इंजरी है इस गले से लेकर के उन्होंने रैप किया है, सिर्फ चेहरा छोड़ दिया है। ये सारी इंजरी को ये ढक करके पैर तक उसको रैप कर दिया और मॉर्चुरी से सीधा निकाल करके क्रेमेटोरियम में ले जाते हैं। अब बिल्कुल विक्षिप्त अवस्था में उनके पिताजी आते हैं। फैमिली वाले बॉम्बे के रहने वाले कोई है नहीं, पटना से फ्लाइट पकड़ के इतनी दुखद स्थिति में इतने दुख के साथ पहुंचते हैं। वो लोग इस हालत में नहीं थे क्वेश्चन करने के लिए कि बॉडी को जो लास्ट उनका अंतिम जो संस्कार करना है वो किस तरह से करना है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ नहीं। और सीधा चिता पे रख करके आग लगा दिया। ना कोई वेदी, ना ये शरीर को नहलाया, क्योंकि नहलाया जाता तो ये बात पता चल जाती कि ना पोस्टमार्टम हुआ है और पूरे बॉडी में हत्या के जितने भी घाव के निशान है, गहरे गहरे और बहुत ही घातक निशान है, सब दिख जाता। और उसकी फोटो भी ले लेते। फोटो तो खैर भगवान की ऐसी कृपा हुई कि पूरे दुनिया में फोटो ही फोटो छापे हुए। सारी इंजुरी, एक एक इंजुरी की फोटोग्राफ है जो हम आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे। और तब ये बात यहाँ तक उठेगी कि सुसाइड कहाँ से हुआ और अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। ये केस है अबेटमेंट ऑफ मर्डर का। ये पूरा गिरोह, जत्थे के जत्थे, ये अपराधी हैं अबेटमेंट ऑफ मर्डर के, सुसाइड के नहीं है।
कहीं से भी एक भी एविडेंस सुसाइड का नहीं है। और इतनी आंधी चल रही है सुसाइड के ऊपर। ये मैडम कहती है कि सुशांत सिंह राजपूत मैरिजुआना खाता था। फिर कहती है जो कि एक नशा का ये है मामला है, नशा करने वाला मस्ती में रहेगा, वो सुसाइड क्यों करेगा। फिर कहती है क्यूटिपिन खाता था, ये पागलपन की दवाई है, सिजोफ्रेनिया की दवाई है, बहुत फेमस दवाई है। तो उसको सिजोफ्रेनिया किसी डॉक्टर ने डिक्लेयर किया है क्या? हाँ, जो डॉक्टर डिक्लेयर करेगा वो बर्बाद हो जाएगा अच्छे खासे आदमी को, अगर सिजोफ्रेनिक डिक्लेयर किया तो। तीसरी बात है, कहती है कि ये सेरा टैब खाता था, ये एंटी डिप्रेशन दवाई है, किसने प्रिस्क्राइब किया? हाँ, किसी ने उसको डिप्रेस नहीं देखा, ये रिया चक्रवर्ती ने देखा, इसके गैंग ने देखा। और जो लोग भी ये जो मुकदमा लाए हैं अबैटमेंट और सुसाइड का, उन्होंने इमेजिन कर लिया कि सुसाइड किया है टेलीपैथी से और लिख दिया। आज सुशांत सिंह की आत्मा को कैसा महसूस हो रहा होगा, किसी ने सोचा है? कितने भयंकर तरह से जिसको मारा गया है और उसके बारे में तुम कहो कि इसने अपनी जान खुद ले ली है। 180 डिग्री अलग है ये दोनों मामला। सुसाइड मतलब मैंने अपनी इच्छा से अपने आप को मारा, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड मैंने किसी ने मुझे उसकाया और मैंने अपनी जान खुद ले ली। हत्या मतलब मुझे जीने का अधिकार है, मुझे जीने की इच्छा है, मुझे जीने की जरूरत है, और मुझे मेरे घर में एक बहुत ही जघन्य अपराध के अंदर मुझे मार दिया जाता है। दोनों में कितना डिफरेंस है। और अभी जो आंधी चल रही है, आप लोग सबको थोड़ा धैर्य रखिए, ये सब बंद हो जाने वाला है। ये जो हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं, इन्होंने साबूत को छिपाया है, साबूत को ये दबाया है, साबूत को डिस्ट्रॉय किया है, मतलब बर्बाद किया है। और इनके ऊपर भी धारा 204 इंडियन पेनल कोड के अंदर में 120B और 34 के अंदर इनका ये इनके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए और इनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जानी चाहिए, डॉक्टरों की और हॉस्पिटल की भी। अब लास्ट में यह है कि CBI और एम्स की, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की जो बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स है, वो इस बोगस पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे कोई भी अपना ओपिनियन नहीं बना सकते, क्योंकि ये बिल्कुल गलत है। संजीव सिंह नाम के आदमी ने बॉडी उठा करके हॉस्पिटल को दे दिया, कौन होता है वो देने वाला है, और आपने क्यों पोस्टमार्टम कर दिया, बिना क्यों इंतजार नहीं किया उनके परिवार को आने का? कि सिर्फ परिवार को अधिकार है बॉडी हैंड ओवर करने का। तो जब आपको किसी ने, स्ट्रेंजर ने, हाँ, हत्या के सारे सबूत को मिटाने के लिए आपको कहा कि इसको मिटा दो, हाँ, और एक नकली ये बना दो, और आपने कर दिया, तो आगे आप भुगतिएगा। और रिया चक्रवर्ती अभी खुद ड्रग के चक्कर में फंसी हुई है। ड्रग खा के जो उसने वीडियो बना करके जो वायरल हो रहा है वो सारी दुनिया देख रही है। और ये सुशांत सिंह राजपूत को कहती है कि मैरिजुआना खाता था। जब तुमको पता है कि मैरिजुआना खाता था, तुमको पता है कि वो सिजोफ्रेनिया की दवाई खाता था, तुमको पता है कि वो डिप्रेशन की दवाइयाँ खाता था, तो तुमने क्यों ट्विटर में ट्वीट किया कि मैं उसके गर्लफ्रेंड के होने के नाते मैं CBI की इंक्वायरी करवाना चाहती हूँ कि आखिर किस हालात के अंदर सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया। तुम्हें नहीं पता है, अब तुम बखान कर रही हो, ये करता था, ये करता था, ये करता था, तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। बाकी अगले वीडियो में। आपको नमस्कार।